we are sitting on the same platform. It was a big deal for me, and everyone respects him a lot in India, including me. And as an actor, sitting with him on the same, भूल के वो बैगेज हटा के उस किरदार में आना ही पड़ता है, तो ही आप सच्चे एक्टर हो। आपका जो आपकी निजी लाइफ में जो हो रहा है वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। इंतजार क्यों कर रहा है कि जब कोई तुझे किसी शो से निकालेगा या तेरा मजाक उड़ाएगा या तुझे चुप रहने को कहेगा, तो उस दिन का वेट क्यों कर रहा है? तो अभी ठीक हो सकता है। तो शायद स्विच ऑफ और स्विच ऑन करते हो वहां से। डिप तो आना ही है, रोज आना है हो सकता है। रोज आपके दिन में एक ऐसा पल आएगा जब आप बहुत सैड हो जाओगे, यार कि ये क्या हो रहा है यार। Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I am in conversation with the amazing, talented Sharad Kelkar. So nice to have you, sir. Thank you, Aina. Once again on Instant Bollywood. Sir, जब हम हैदराबाद आए थे लॉन्च देखने के लिए and you know to see you share the stage with Rajamouli sir, जब आप बात भी कर रहे थे तभी आपकी आंखें नम हो गई थी. You were swelling with joy. What was going on in your head उस दौरान? I'll tell you honestly, I worked with him in the first part when we were dubbing. He used to come every day. After that, ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, ज़्यादा बात नहीं हुई. And there's few things which you want to do, your share, your joy, your success, your, that's Thanksgiving you want to do, and that was remaining in my life. I couldn't thank him much. Yeah. So that was an opportunity, first of all, to share stage with him, and we are sitting on the same platform. It was a big deal for me, and everyone respects him a lot in India, including me. And as an actor, sitting with him on the same stage is a big thing for anyone. So that moment particularly, and we are reuniting for a thing which we all are very proud of, the whole industry is very proud of, and being a part of it again. So it was like a little nostalgic as well as a sheer joy for me. So I think the emotions were that, though we spoke in length later, and such a great guidance he gives to the youngsters, and for me also particularly. एक ऐसे इंसान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो जिसको पूरा देश इतना पसंद करता है, उसमें आप क्या कुछ अलग चीज़ देखते हो कि जो उनको एक्चुअली सक्सेसफुल बनाता है? मैंने बहुत जगह बोला, बट वो ये कि यार हमारे यहाँ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं एंड बहुत अच्छा काम करते हैं. About him, first of all, if you see all his, I think 13 or 14 films, 15 films, what he's made, every film is different from another. Every film, the way he conceptualized or written with his father or alone, he executed in the same way. You can see straight his vision in the film. Nothing is diluted, nothing is been changed. The way he wanted the film, he made it exactly the way. So that's the best part about that. That's why he's you can see him in a different light altogether. And everyone has a this wish to work with him. I got the opportunity behind the camera, but hoping, still huge. But hoping maybe in near future I'll be in front of camera and he'll be behind the monitor. And बिल्कुल वो होगा, बहुत जल्द होगा. बिल्कुल उम्मीद है मुझे. और डबिंग मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली, क्योंकि आप वो जोन में नहीं होते, वो कॉस्ट्यूम में नहीं होते, वो सेट पे नहीं होते, पर आपको वो कैरेक्टर के उसमें फील करना होता है, आपको कैरेक्टर के अंदर रहना. ऑन डेज वेर यू आर नॉट फीलिंग द जोन ऑफ द कैरेक्टर, पर आपको वो इमोशन अपनी आवाज़ में निकालनी होती है, आपको वो जोन में रहना पड़ता है. पहली बात तो बिल्कुल सही कही. मैं जो लोग भी अगर डबिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर उनकी आवाज़ अच्छी है तो वो डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं. ये बहुत बड़ा मिथ है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इट्स मोर ऑफ एक्टिंग, लेस ऑफ वॉइस, विच ऑलवेज से. आवाज़ एक साधन है जो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स में शायद फिट बैठ जाए आपकी, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर कैरेक्टर में अपनी सेम आवाज़ लेके वो कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं. आपको कहीं ना कहीं बहुत विजुलाइज करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है. पहली बात तो हाँ, तो ये टफ जॉब है. दूसरी बात ये कि अगर मैं जिस टाइम पे उस जोन में नहीं हूँ, देखिए एक्टर की ज़िंदगी ऐसी है, चाहे वो कैमरे के सामने हो, चाहे वो कैमरे के पीछे हो, आपको सब कुछ छोड़ के वो जो बैगेज है पीछे, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आपको सब भूल के वो बैगेज हटा के उस किरदार में आना ही पड़ता है, तो ही आप सच्चे एक्टर हो.
आपका जो आपकी निजी लाइफ में जो हो रहा है वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, जी वो नहीं कर सकते आप। तो वो तो अनसेड एक एग्रीमेंट है एज एन एक्टर। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपकी निजी ज़िंदगी में कौन जी रहा है, आपके कोई करीबी मर रहा है, कोई बीमार है, कुछ चल रहा है, उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका काम है, आपको काम आगे करना है। पर तो वो काफ़ी मुश्किल होता होगा। मैं बहुत झूठ नहीं बोल रहा, एक सब्जी वाले को भी अपने घर की समस्याओं से निकल कर बाहर आके सब्जी बेचना भी उतना ही कठिन है। तो कोई भी काम क्योंकि आपने चूज़ किया है वो काम, तो उसकी डिफ़िकल्टीज आपकी हैं। और अगर मैं कोई और काम चूज़ करता उसमें कुछ डिफ़िकल्टी तो वो भी उतनी ही डिफ़िकल्ट होती मेरे लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो डिफ़िकल्टी के मायने किसी और की डिफ़िकल्टी से कुछ कम या ज़्यादा है। हो सकता है कि एक बैंक में काम करने वाला आदमी भी उतना ही परेशान हो जितना मैं अगर किसी चीज़ से परेशान हूँ। तो सबकी परेशानियाँ सेम है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और सबको उस परेशानी से निकल के अपने काम में 100% देना पड़ता है। सर लास्ट टाइम मैंने जब आपसे बात की थी, आपने कहा था कि यू नो ग्रोइंग अप, स्पेशली जब आप मुंबई आए थे, स्टैमरिंग वाज एन इशू फॉर यू। और आज अगर ये शरद की मुलाकात उस शरद से हुई तो क्या कहेंगे? बिकॉज यू वुडंट हैव इमेजिन्ड योर सेल्फ टू बी सो अफ्लुएंट एंड नाउ पीपल आर लविंग योर वॉइस इवन बैक देन, बट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से। ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब किसी ने पूछा नहीं मुझसे आज तक इस सवाल। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन आई नेवर थॉट ऑफ, बट इफ आई थिंक अबाउट इट तो मैं बोलता उस शरद से कि देख तेरा तू कर सकता है अभी भी, तू उस दिन का इंतज़ार क्यों कर रहा है कि जब कोई तुझे किसी शो से निकालेगा या तेरा मजाक उड़ाएगा या तुझे चुप रहने को कहेगा, तू उस दिन का वेट क्यों कर रहा है? तो अभी ठीक हो सकता है। तो शायद मुझसे वो ये एडवाइस देता है कि जल्दी ठीक हो जा, तो शायद जल्दी काम करना शुरू कर देगा। कॉन्फिडेंस में बहुत था मेरे में, आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरे में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रही है। मैं अपने फैमिली का बेस्ट डांसर था। मैं मतलब हर शादी में नाचता था मैं, आगे आके मेरा शो होता था अलग से। बट वही है कि एक चीज़ जो मैंने एनालाइज की बाद में कि मेरा ब्रीदिंग पैटर्न रॉन्ग था, शायद इसलिए मैं स्टैमर करता हूँ अभी भी। ऐसा नहीं करता, बट हाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। मैं वो ट्रिक समझ गया हूँ कि अपनी सांस को कैसे सांस और सांस दोनों कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो मैं सीख गया हूँ। बट हाँ ये एडवाइस पक्का देता कि यार थोड़ा पहले कर लेता बेटा, थोड़ा लेट किया तूने। नहीं बिल्कुल, आई डोंट थिंक लेट या जल्दी कुछ होता है, पर आई थिंक मेरे हिसाब हुआ से है। मतलब, हाँ हो तो हो। और आप अपनी आवाज़ का अगर कुछ करते हो, जैसे आप ध्यान रखते हो, डू यू नॉट ईट समथिंग, डू यू ईट समथिंग, डू यू? मैं सिर्फ एक चीज़ अवॉइड करता हूँ नॉर्मल लाइफ में, तो मैं दो चीज़ें मतलब कोशिश करता हूँ मैं बहुत अवॉइड। अनलेस बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो ठंडा पानी की नहीं मिले तो फिर मैं आइस डाल सकता हूँ, बट अगर मैं बर्फ़ थोड़ा सा, बस बाकी तो मैं खट्टा पीटा सब, चाट पकौड़ी सब खा लेता हूँ। दही वही कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नींबू कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी कुछ मैं से रियाज या ऐसा कुछ करता नहीं। जिस दिन मैं गाना शुरू करूँगा ना उस दिन शायद मैं रियाज शुरू करूँगा, वो भी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके मुँह में घी शक्कर, सरस्वती बैठी हो आपकी आंखों पर, आपकी ज़बान पर। आप you know अभी people are loving your performances also as an actor so much. What do you have to say? हाँ काफ़ी टाइम से actually, but ever since even Lakshmi and before that, since television, I think people have loved to see you as an actor, and today to play both roles. What are your plans and how do you think your future is going to plans? देखो मेरा हमेशा यही plans बनाने से अच्छा सपने देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपने होंगे तो आप उसकी तरफ काम करेंगे जी। तो मैं सपने बहुत बड़े देखता हूँ, मेरी फिल्म में डायलॉग भी है ना कि मैं सपने बहुत बड़े देखता हूँ और उसकी तरफ काम करने की कोशिश करता हूँ। ये किस्मत से ज़्यादा कम तो मिलेगा नहीं किसी को, ठीक है, बट एफर्ट्स आपके हाथ में होते हैं जी। आप एफर्ट मारते रहो, किस्मत होगी तो मिल ही जाएगा। मतलब अगर ये किस्मत है लेकिन आप एफर्ट नहीं मारोगे तो शायद मिल के भी निकल जाएगा हाथ से जी। बट आखिरी सवाल, आपने कभी किस्मत पे डाउट किया है कि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ बट शायद किस्मत साथ नहीं दे रही? हमेशा सवाल आता है, हर एक के दिमाग में आता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, हमेशा कि यार मेरी किस्मत क्यों ऐसी है, ये हमेशा हर एक, मेरे नहीं बड़े से बड़े एक्टर के दिमाग में आता है जब वो फेज आता है पर्टिकुलरली। देखिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ ट्रिक वही है कि आप कैसे वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन करते हो वहाँ से। डिप तो आना ही है, रोज आना है, हो सकता है रोज आपके दिन में एक ऐसा पल आएगा जब आप बहुत सैड हो जाओगे यार कि क्या हो रहा है यार, या किसी भी चीज़ से, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया। आप उस पल से कैसे
फुर्र होते हो ना, वो इम्पोर्टेंट है। वो ट्रिक सीखना चाहिए, वो ट्रिक आनी चाहिए आपको। और बहुत मेथड्स हैं उसके, आप अगर खुद सोचोगे ना अपना मेथड आपको मिल जाएगा कि यार अभी जैसे मैंने शुरू की था कि मेरे को बहुत दिमाग खराब है तो फिर मैं कोई कॉमेडी शो देख लेता था तो आपको डाइवर्ट हो गया, आप देख लियो उधर। या आई वुड थिंक अबाउट माई डॉटर, आई वुड थिंक अबाउट माई वाइफ, आई वुड थिंक अबाउट माई मदर और मे बी आई रिमेंबर माई फादर। कैसे आप उस डिप से तुरंत बाहर आते हो ना, जितना उस डिप में रहोगे ना उतनी लाइफ हेल होती जाएगी। उस डिप से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। डिप तो आने ही वाला है, वो तो डेस्टाइन्ड है, वो आएगा ही आएगा। चाहे वो आप कितने बड़े एक्टर हो, कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितने बड़े पॉलिटिशियन हो, कितने कुछ भी हो, डिप आना ही आना है और बार बार आना है। उससे जंप आउट कैसे करते हो ना आप, वो ट्रिक सीखने की। और मैं उस पर काम करता रहता हूँ हमेशा, मैं अभी भी करता हूँ काम उस पर। परेशानी ऐसी परेशानी मेरी लाइफ में बहुत सारी हैं बट आप कैसे खुश रहना चाहते हो वो बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग कमिंग इन द फ्यूचर। हम आपकी परफॉर्मेंस और आवाज़ को आगे भी सुनते आएंगे। थैंक यू। सो मच। हाय, दिस इज शरद केलकर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।